Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your maths teacher. Now we will start revision of lesson number 4, division and unitary method. So student, before starting our today's topic, first we will see what you had learned our last classes. So student, what you had learned our last classes, first you had learned the 2-digit number divided by 1-digit number. Now look at here, this is the 2-digit number and this is the 1-digit number. Now look at here, 45 divided by 5 equal to 9. We are dividing 45 to 5, we will get answer 9. So that 45 is called dividend. What you call? That 45 is called dividend, 5 is called divisor and 9 is called quotient. 45 is called dividend, 5 is called divisor and 9 is called quotient. So this is the dividend, divisor and quotient. And whatever the remain, this is called remainder. What is this? Remainder. Okay. And how to check our answer is correct or wrong? First, remainder is the less than divisor. Remainder always need to small as a divisor. Okay, so look at here, 3 less than 5. In this example we will get remainder is the 3 and 3 is the less than 5, means this is the correct. And again one methods. Then check the quotient. What is quotient? Into divisor. Quotient into divisor. Now here is the, look at here, is the quotient is the 9 and divisor is the 5. 9 into 5 plus remainder equal to dividend. That 3 numbers value we want a dividend. Okay, suppose we are dividing 9 into 5, how much getting? 45, and add 45 in the 3, so how much getting? 48. So this 48 is equal to 48. This 48 is the dividend, so this is the checking the after doing the division. Then next we had learned the property of division. So which property of division? So look at your first number property. To division fact can be derived from the 1 multiplication fact. So look at here, 7 into 6, how much getting? 42. So 42 is the factors of 7 and 6. Suppose we are dividing 42 to 6, so we will get answer 7, and 42 we will divide it by 7, so we will get another, that factor is the 6. So this is the factors of division. This is the relationship between the multiplication and division. Okay, then next is the factor when we are divided 6, means for example 6 divided by 1 equal to 6. If the number is divided by 1, the answer is number itself. Okay, suppose we are dividing 1 in any number, so we will get itself number. For example, look at here, 6 divided by 1. 6 divided by 1 we will get 6, means itself number. Then third number, if a number is divided by itself number, if the number is divided by itself number, the answer is the 1. Now look at here example, 10 divided by 10, means 10 is the itself number is dividing by 10 divided by 10 we will get 1. So this is the property number 3. When we are divided itself number, we will get answer is the 1. Then next is the, if the 0 is divided by any number, so we will get quotient is the 0. Now look at here, 0 divided by 5 we will get 0. So this is the property of division. Now we'll start our today's topic, division of a 4-digit number by a 1-digit number. First, earlier we had learned 2-digit number or 3-digit number divided by 1-digit number. So now look at here, this is like that same 2-digit or 3-digit number. Now look at here one example, 9,935 divided by 8. 9,935 divided by 8. Now 9 is greater than 8, so 9 is present in the 8 tables. Now what is the nearest value? 8. So we'll take 8 and writing here 1. Now 9 minus 8
equal to 1. Now bring down 9. Now here is the 19. Now 19 is present in the 8 tables. Look at here. Here wrote I 8 tables. Is present. No. What is the nearest value? 16. 16 is placed of the 2. So that's why we are writing here 2. 19 minus 16. We will get 19 minus 16. We will get 3. Now bring down 3. Now 3 and 3, 33. Now look at here 8 tables. 33 is present. No, what is the nearest value? 32. 32 is the place of 4. So that's why we are writing here 4. 33 minus 32, we will get 1. And now bring down 5. Now here is the 15. Now look at here 8 tables. 15 is looking. No, what is the nearest value? 8. 15 minus 8, we will get 7, and 8 is the place of 1. So how much getting quotient? 1241 we will get quotient. So this is the example. Now all of you look at in exercise 4.2. Now look at here, complete the following division sums. So now here look at here 2, then यहाँ पे क्या था, फिलिंग द ब्लैंक्स था, देन 4 एंड यहाँ पे भी फिलिंग द ब्लैंक्स था. ठीक है, यहाँ पे नीचे क्या दिया था? 21 दिया था. तो हमें यहाँ पे 21 दिया था, तो हमें क्या चाहिए? और यहाँ पे क्या है हमारा रिमाइंडर कितना, मतलब यहाँ पे कितना बच गया है? 2 बच गया है. तो ऐसा कौन सा नंबर है कि 2 में, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है कि 1 माइनस करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा हमारा? यहाँ पे कितना बचेगा? 2. सो 1 में से 3 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा 2 बचता है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ गया. ठीक है. नाउ 23 माइनस 21. 21 इज प्रेजेंट इन द 7 टेबल इन द प्लेस ऑफ 3. सो ये यहाँ पे 3 आ गया है. ठीक है. नाउ 3 माइनस 1 वी विल गेट 2. नाउ यहाँ पे ऑलरेडी 4 लिखा है, तो हम क्या लिख देंगे? 24. ठीक है. 24 में से हमें यहाँ पे क्या माइनस किया है? 21 7 के टेबल में कौन से प्लेस पे है? 3 वाले प्लेस में. सो 24 माइनस 21 3. ठीक है. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 लिखा है और यहाँ पे 3 बच गया है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 7 आएगा. और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा. क्यों? क्योंकि 7 के टेबल में 5 वाले प्लेस पे 35 आता है. तो यहाँ पे 37 माइनस 35 इक्वल टू 2 बच गया है. सो हाउ मच गेटिंग क्वेश्चन? 335 क्वेश्चन हो गया और 2 हमारा रिमाइंडर हो गया. सो लाइक दैट दिस आल्सो एग्जाम्पल. ओके, दैट ऑलरेडी आई एम एक्सप्लेनिंग यू. So now look at here question number B, divide. So in this topic we will see some example. Now look at here example number 1. What is the example number 1? 4032 divided by 3. 4032 divided by 3. So now look at here in the notebook example number 1. What is the example number 1? 4032 divided by 3. Okay, now look at here, 4 is greater than 3, so we'll take 4. So 4 is present in the 3 tables. Now what is the nearest value? 3. So we will write 1 here and here 3. 4 minus 3 1. Now bring down 0 को bring down करेंगे. ठीक है. Now look at here 3 table. This is the 3 table. In the 3 tables 10 is present. No. What is the nearest value? 9. 9 is the place of 3. So हम यहाँ पे लिख देंगे 3 और यहाँ पे 9 लिख देंगे. 10 minus 9 1. यहाँ पे कितना बच गया? 1 बच गया. नाउ अभी ये 3 है, उसको ब्रिंग डाउन करेंगे. यहाँ पे कितना हो गया है? 13 हो गया. नाउ लुक एट हियर 3 टेबल. 3 के टेबल में 13 दिख रहा है क्या? नो. व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू? 12. 12 इज द प्रेजेंट इन द प्लेस ऑफ 4. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे और यहाँ पे 12 लिखेंगे. नाउ 13 माइनस 12 1. नाउ ब्रिंग डाउन 2. सो 12 कहाँ पे है? हमारे 3 के टेबल में 4th वाले प्लेस में है, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे 12 माइनस 12 0. सो हाउ मच गेटिंग आंसर? 1344 हमें क्वेश्चन मिल गया और रिमाइंडर हमें 0 मिल गया. ठीक है.
नाउ लुक एट हियर एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? 3945 divided by 5. 3945 divided by 5. Now look at here. 3 is the less than 5. 3 हमारा 5 से छोटा है तो हम क्या लेंगे? 39 लेंगे. So now look at here 5 tables. 5 के टेबल में 39 आता है क्या? No. What is the nearest value? 35 and 40. But 40 is greater than 39. So we'll take 35. 35 is the place of 7. So हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे और यहाँ पे 35. 39 माइनस 35 कितना होगा? 4 होगा. और नाउ ब्रिंग आउट 4. अभी ये 4 है, उसको ब्रिंग आउट करेंगे. नाउ 44. नाउ लुक एट हियर 5 टेबल. 5 के टेबल में 44 होता है क्या? नो. व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू? 45 एंड 40. बट 45 इज द ग्रेटर देन 44. सो विल टेक 40 एंड 40 इज प्रेजेंट इन द प्लेस ऑफ 8. सो विल राइट हियर 8 एंड यहाँ पे हम लिख देंगे 40. 4 माइनस 44. अब नाउ ब्रिंग आउट 5. अभी 45. 45 इज प्रेजेंट इन द 5 टेबल्स. येस, इन द प्लेस ऑफ 9. सो विल राइट हियर 9 एंड यहाँ पे लिख देंगे 45. 45 माइनस 45 कितना हो गया है? 0 हो गया है. तो हमें कितना मिल गया है क्वेश्चन? 789 क्वेश्चन मिल गया है और हमें रिमाइंडर कितना मिल गया है? 0 मिल गया है. सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2. Now look at in example number 3. What is the example number 3? Example number 3 is the 6932 divided by 8. 6932 divided by 8. Now 6 is the less than 8, so we'll take 69. ठीक है, 69. नाउ लुक एट हियर 8 टेबल. 8 टेबल में 69 है क्या? व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू? 64 एंड 72. बट 72 इज ग्रेटर दैन 69, सो विल टेक 64. 64 इज प्रेजेंट इन द 8 टेबल इन द प्लेस ऑफ 8. सो विल राइट हियर 8 एंड यहाँ पे लिख देंगे 64. 69 माइनस 64 विल गेट 5 एंड ब्रिंग आउट नाउ 3. तो यहाँ पे क्या आ गया? 53 हो गया. Now look at here 8 table. 53 is present. What is the nearest value? 48. 48 is present in the 8th place. So we'll write here 48. 48 is present in the 6th place. कहाँ पे है? 6 वाले प्लेस पे है. So we will write here 6 और यहाँ पे लिख देंगे 48. Now 53 माइनस 48. 53 में से 48 गया तो कितना बचता है? 5 बचता है. और नाउ ब्रिंग आउट 2. कितना हो गया? 52. नाउ लुक एट हियर 8 टेबल्स. 8 के टेबल में 52 है क्या? नो. व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू? 48. 48 प्लेस ऑफ द 6. सो विल राइट हियर 6. यहाँ पे लिख देंगे 48. यहाँ पे कितने बचेंगे? 52 माइनस 48. यहाँ पे हमारा बच जाएगा 4. कितना बच गया? 4. सो हमें क्वेश्चन कितना मिल गया है? 866 एंड रिमाइंडर कितना बच गया हमारा? 4. सो क्वेश्चन इक्वल टू कितना हो गया? 866 एंड रिमाइंडर हमारा कितना हो गया? 4 हो गया. सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3. नाउ example number 4 like that same. So now we will see example number 5. What is the example number 5? Example number 5 is the 7802 divided by 6. 7802 divided by 6. Now look at it. 7802 divided by 6. Now look at here. 7 is the greater than 6, so we'll take 7. So 7 is present in the 6 table. No. What is the nearest value? 6. 6 is the place of 1. So 7 minus 6, 1. Now bring out 8. Now which is the value? 18. Now look at here 6 table. 6 के table में 18 आता है. Yes, in the place of 3. So we'll write here 3 और यहाँ पे हम लिख देंगे 18.
सो यहाँ पे 18 कितना हो गया, 0 हो गया। नाउ ब्रिंग आउट 0 को ब्रिंग आउट किया तो 0 के साथ व्हेन वी आर डिवाइडिंग 0 इन एनी नंबर्स वी विल गेट आंसर 0। तो यहाँ 0 - 0 कितना हो गया, 0 हो गया। नाउ ब्रिंग आउट 2 को ब्रिंग आउट किया है, 2 इज़ द लेस दैन 6। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड होगा क्या, नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। और यहाँ पे हमारा 0 - 2 हमारा 2 हो गया। तो हमारा क्वेश्चन कितना हो गया, 1300, और हमारा रिमाइंडर कितना बच गया है, 2 बच गया है। सो हाउ मच गेटिंग क्वेश्चन, 1300। नाउ लुक एट हियर, ये जो 2 है, ये 2 हमारा 6 से छोटा है, तो इसलिए हमने क्या किया है, ये इसके साथ डिवाइड होगा क्या, नहीं। सो इसलिए यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया और यहाँ पे 0 लिख दिया है। तो 2 - 0 कितना होता है, हमारा 2 होता है। सो हमारा क्या हो गया है, क्वेश्चन कितना हो गया है, 1300। नाउ आपको कंफ्यूज हो रहा है कि ये आंसर करेक्ट है कि नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस करके चेक करके देखेंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू अवर रूल, क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड कितना है, डिविडेंड एंड ऐड करेंगे, उसके बाद रिमाइंडर, उसके बाद हमारा डिवाइज़र मिलता है कि नहीं, 7802। क्वेश्चन कितना है, 1300, हमारा डिवाइज़र कितना है, 6 है, और उसके बाद रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया। तो यहाँ देखो 1300 मल्टीप्लाई बाय 6, 0 × 0 0, 0 × 0 0, 3 × 6 18। So 8 is writing here, 1 is carry, okay, 1 × 6 6 and 1 + 7। तो हमारा कितना मिल गया है, 7800 हो गया। उसमें हम हमारा रिमाइंडर ऐड करेंगे तो कितना होता है, 0 + 2 2, 0 8 7। तो हमारा क्या मिल गया है, देखो हमारा आंसर कितना मिल गया है, 7802। तो हमारा ये देखो क्या है, ये डिविडेंड है, वो भी इतना है, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ देन 6 7 8 9 इज द सिमिलर लाइक दैट। नाउ लुक एट हियर एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या है, 4890 divided by 6. Now look at here, 4890 divided by 6. 4 is the less than 6. 4 क्या है, 6 से छोटा है, so we will take 48. Now look at here 6 table. In the 6 table 48 present. Yes, 48 is present in the place of 8. कौन से प्लेस पे है, 8 वाले प्लेस पे। तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे, 48 - 48 0. Now bring down 9. 9 is present in the 6 table. Now what is the nearest value, 6. 6 is the place of 1. So we'll write here 1. यहाँ पे 9 - 6 3. Now bring down 0. कितना हो गया, 30 हो गया। Now look at here 6 table. In the 6 table 30 is present. Yes, in the place of 5. So we'll write here 5 and 30 - 30 0. So how much getting question, 815 and remainder equal to 0. Now that 11 12 13 14 15 16 17 18, this is the similar like that. Now look at here example number 19. So what is the example number 19? 6039 divided by 7. 6039 divided by 7. Now look at here, 6 is the less than 7, so we'll take 60. Now look at here 7's table. 7 के टेबल में 60 आता है क्या, no. What is the nearest value, 56. 56 is present in the place of 8, so we'll write here 8 और यहाँ पे लिख देंगे 56. 60 - 56 we will get 4. Now bring down 3. कितना हो गया, 43. Now look at here 7's table. 7 के टेबल में 43 है क्या, नो. व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू, 42. 42 इज द प्लेस ऑफ 6, सो विल राइट हियर 6 एंड 42. 43 - 42 1. नाउ ब्रिंग डाउन 9. यहाँ पे हो गया 19. नाउ लुक एट हियर 7 टेबल. 7 के टेबल में
19 है क्या? नो. व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू? 14. सो 14 इज द प्लेस ऑफ 2. सो विल राइट हियर 2 एंड यहाँ पे लिख देंगे 14. 19 minus 14 we will get 5. So how much getting? 5. Question is the 862 and remainder equal to 5. This is the example number 19. Then 20 is the like that same. Okay. Then now look at here, divide by 2 digit number. ठीक है, 2 digit number divide करना है. Estimating the quotient. To divide by the 2 digit number, it is the useful to first estimating the quotient by rounding. ठीक है, हम क्या करेंगे? एस्टिमेटिंग यूज़ करके करेंगे. एस्टिमेटिंग द क्वेश्चन फॉर 73 डिवाइडेड बाय 22. क्या है? 73 को डिवाइड करना है 22 को. तो एस्टिमेटिक के लिए क्या चाहिए हमें? राउंडिंग वैल्यू चाहिए. राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10. नियरेस्ट 10 राउंडिंग करेंगे. ठीक है. 73 डिवाइडेड बाय 22. 73 डिवाइडेड बाय 22 है. तो हमारा 72 है, उस 73 है, उसका राउंडेड वैल्यू कितना आएगा? 70 आएगा. और हमारा 20 है, उसका राउंडेड वैल्यू कितना? 22 है, उसका राउंडेड वैल्यू कितना आएगा? 20 आएगा. सो अभी हमें करने के लिए ये इजी हो जाएगा. अभी 70 डिवाइडेड बाय 20. 70 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू द 7 डिवाइडेड बाय 2. हमने 110 कैंसिल किया तो यहाँ पे क्या हो गया? 7 डिवाइडेड बाय 2 हो गया. देयरफॉर द एस्टिमेटेड क्वेश्चन इज द 3. क्योंकि 2 के टेबल में 7 आता है क्या? नहीं. व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू? 6. 6 इज द प्लेस ऑफ 3 एंड रिमाइंडर कितना बचता है? 1 बचता है. देखो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 7 तो क्या होगा? यहाँ पे 6 हो गया है और यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच गया. तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे एस्टिमेटिंग हमारा क्वेश्चन कितना मिल गया है? 3 मिल गया है. ठीक है. नाउ लुक एट हियर एग्जाम्पल नंबर 2. estimating the quotient in 468 divided by 27. 468 divided by 27. Rounding the 468 to nearest 10 and 27 nearest the 10. जो हमारा 468 है उसकी नियरेस्ट 100 की वैल्यू लेंगे और 27 की नियरेस्ट वैल्यू 10 वाली लेंगे. तो 468 की नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी? 500 होगी और हमारी 27 की नियरेस्ट वैल्यू होगी 30 होगी. तो नाउ लुक एट हियर, 500 में कितने जीरो है? 2 जीरो है और 30 में कितने जीरो है? 1 जीरो है. तो 110 कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ पे 1 जीरो है इसलिए. अगर यहाँ पे 30 के जगह पे 300 होता तो 220 कैंसिल होता है. ठीक है. तो 30 में 1 जीरो इसलिए 110 कैंसिल हो गया. तो यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय 3 हो गया. ठीक है. नाउ लुक एट हियर, 50 डिवाइडेड बाय 3 हो गया. नाउ 5 इज प्रेजेंट इन द 3 टेबल्स. नो. व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू? 3. नाउ यहाँ पे 1 आ गया है. 5 minus 3 2. यहाँ पे 1 आ गया है क्योंकि 3 इन द प्लेस ऑफ 1. नाउ ब्रिंग डाउन 2. यहाँ पे 20 आ गया है. 20 इज प्रेजेंट. नो. व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू? 18. 18 इज द प्लेस ऑफ 6. सो 20 minus 18 इक्वल टू 2. सो कितना क्वेश्चन मिल गया हमारा? 16 मिल गया. और हमारा यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर कितना है? 2 बच गया. सो दिस इज द estimating the question. Now look at here exercise 4.2. Now some example we will solve here. Now look at here example number 1, then after example number 5 and example number 9 and 10 we will solve here. So now look at here example number 1. What is the example number 1? Look at here, 64 divided by 12. 64 divided by 12. नाउ 64 की राउंडेड वैल्यू क्या होगी? 60 होगी और 12 की राउंडेड वैल्यू क्या होगी? 10 होगी. अगर हम 60 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया तो 1 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे. अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, सपोज वी आर डिवाइडिंग वन नंबर सो विल गेट इटसेल्फ नंबर. तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया है? 6 मिल गया है. तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या आता है?
क्या आता है 6 आता है। देन लुक एट हियर एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है 507 उसको डिवाइड करना है 507 को डिवाइड करना है 29 के साथ। 507 को हमें डिवाइड करना है 29 के साथ। सो 507 की नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी 500 होगी और 29 की नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी 30 होगी। ठीक है, नाउ यहाँ पे 110 कैंसिल होगा। ऐसे अगर करेंगे 500 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो 110 कैंसिल हो गया क्योंकि 30 में 10 है। तभी यहाँ पे क्या हो गया 50 डिवाइडेड बाय 3 अगर 3 के साथ 50 को डिवाइड कर से 5 इज प्रेजेंट इन द 3 टेबल्स। नो व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू 1 मतलब 3 होता है। तो 5 माइनस 3 2। नाउ ब्रिंग डाउन 0। 20 is present in the 3 tables. Know what is the nearest value 18 is present in the place of 6. Now look at here 3 tables। 3 का टेबल्स है, 3 के टेबल्स में 18 से 18 कौन से प्लेस पे है 6 वाले प्लेस पे है। तो यहाँ पे 20 माइनस 80 कितना हो गया 2। तो हमारा क्वेश्चन कितना मिल गया 16 और रिमाइंडर हमारा मिल गया 2। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5। नाउ लुक एट हियर example number 9। what is the example number 9? 6842 divided by 27 क्या है 6842 divided by 27। नाउ हम यहाँ पे 1000 की राउंडेड वैल्यू करेंगे। यहाँ पे 100 था तो हमने 100 के लिया, तो यहाँ पे 1000 की क्या लेंगे राउंडेड वैल्यू। 6842 की राउंडेड वैल्यू होगी 7000। कितने होगी 7000 और 27 की राउंडेड वैल्यू क्या होगी 30 होगी। सो अगर हम 7000 को डिवाइड करेंगे 30 के साथ तो 30 में 10 है और इसमें 10 दोनों में 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया 700 डिवाइडेड बाय 3 हो गया। अभी 3 को हम डिवाइड करेंगे 700 के साथ। 7 प्रेजेंट इन द 3 टेबल्स। नो व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू 3 2 6। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 7 माइनस 6 1 हो गया, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। नाउ ब्रिंग डाउन 0 लिख दिया। 10 इज प्रेजेंट इन द 3 टेबल्स। नो व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू 9 इज द प्लेस ऑफ 3। सो 10 माइनस 9 1। नाउ ब्रिंग डाउन 0। फिर से 10 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा क्योंकि 10 नॉट प्रेजेंट इन द 3 टेबल्स। सो 10 माइनस 9 इक्वल टू 1। सो हमें क्वेश्चन कितना मिल गया है 233 एंड रिमाइंडर हमारा 1 बच गया। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 9। नाउ लुक एट हियर एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है 9999 डिवाइडेड बाय 33। ठीक है, 9999 ये किसके नियरेस्ट है और 33 किसके नियरेस्ट है। 9999 ये नियरेस्ट है 10,000 के। किसके नियरेस्ट है 10,000 के। और इसका नियरेस्ट क्या होगा, इसका नियरेस्ट होगा 30। ठीक है, सो नाउ लुक एट हियर 10,000 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया 1000 बच गया। अभी 3 को हम डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। सो 1 इज़ द लेस दैन 3 सो विल टेक 10 इज प्रेजेंट इन द 3 टेबल्स। नो व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू 9 इज द प्लेस ऑफ 3। सो यहाँ पे हम 10 माइनस 9 1। नाउ अगेन ब्रिंग डाउन 0। यहाँ पे और 9 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे फिर से 1 बच गया, यहाँ पे 0, फिर से यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 9। सो 10 माइनस 9 1। सो हमारा क्वेश्चन कितना आ गया है 333 एंड रिमाइंडर हमारा बच गया है 1। सो दिस इज द एक्सरसाइज 4.3। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे अगर आप बोलेंगे कि 440 है तो यहाँ पे हमने क्या बोला है नियरेस्ट राउंडिंग वैल्यू हमें 100 की चाहिए।
तो इसलिए हम यहाँ पे 440 है, उसके जगह पे हम लेंगे 400 लेंगे, 440 के जगह पे 400 लेंगे. So this is exercise 4.3. I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.